Hello students, how's you all? Today I am going to explain you lesson number 2, Prose Life of 8th class, the Jammu and Kashmir State Board of School Education. So let's get started. Life, Zindagi. The passing wind, what is life? गुजरती हुई हवा पूछती है कि जीवन क्या है? The stars. To shine with one's own brightness is life. When there is no moon, it seems to us as if we were from captivity. We brighten up, and every star feels that it is there. It has some power. It has millions of companions. In fact, we feel that we have a large family of our own. Life of dependence is no life. Thus, having our own light is life for us. तारे कहते हैं अपनी ही चमक से चमकना जीवन होता है। जब वहाँ कोई चंद्रमा नहीं होता तब हमें ऐसा लगता है जैसे हम कैद से छूट गए हैं। हम चमक उठे हैं और हर सितारा ये समझता है कि वह वहाँ है। इसके पास कुछ शक्ति है, इसके लाखों साथी हैं। वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा अपना एक विशाल परिवार है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीवन कोई जीवन नहीं होता। इस प्रकार हमारे पास हमारा अपना प्रकाश होने ही हमारे लिए जीवन है। When the passing wind goes to the moon, फिर गुजरती हुई हवा चंद्रमा के पास जाती है। And what does life mean to you? हवा पूछती है कि तुम्हारे लिए जीवन का क्या मतलब है। द मून कहता है यू सी दिस डार्क स्पॉट ऑन मी, आई एम सिक अ लाइफलेस एंटिटी। द बोरोड लाइट इज द कॉज ऑफ these स्पॉट्स. It is like a shroud enveloping my dead body. My light looks like the laughter of a widow. I am the child of ocean and this is my lot. चंद्रमा कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर ये काले धब्बे देख रहे हो? मैं बीमार हूँ, एक प्राणित वस्तु। ये उधार ली हुई रोशनी इन धब्बों का कारण है। मेरे मृत शरीर को ढकने वाले एक कफन की तरह है। मेरी रोशनी किसी विधवा की हंसी की तरह लगती है। मैं महासागर का बच्चा हूँ और यही मेरा भाग्य है। द विंड मूव्स टू द ओशन विद द सेम क्वेश्चन. फिर हवा इसी प्रश्न के साथ महासागर की ओर चली जाती है. द विंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ टू यू? हवा बोलती है तुम्हारे लिए जीवन का क्या मतलब है? द ओशन, to realize one's limits and maintain one's dignity, to contain all bitter experience, taking them as pearls and rubies. This is my idea of life. These salty waters of mine produce pearls and create clouds full of rain. You can call it a life of penance or renunciation. ओशन यानी कि महासागर कहता है अपनी सीमाओं को समझना और अपनी गरिमा को बनाए रखना, सभी बुरे अनुभवों को समेटना, उन्हें मोतियों और शांति लेना, ये मेरा जीवन के प्रति विचार है। ये मेरे नमकीन पानी मोतियों को पैदा करते हैं और वर्षा से भरे बादलों को बनाते हैं। तुम इसे पश्चाताप या त्याग वाला जीवन कह सकते हो। फिर हवा बादल के पास पहुंचती है। Wind approaches the cloud. The wind, what is life to you? हवा बोलती है तुम्हारे लिए जीवन क्या है? The cloud, what I understand about my life is only this much, that when it rumbles, it only rumbles but doesn't rain. But when it rains, it loses itself and gives away its being in joy and self-abandon. But it must know where to rain. The right place and the right time is response to the call of purchased soil. For me, the real life is to rain on hills which are in dire need of drops of water. बादल जवाब देता है बड़ी तेजी से, जो मैं अपने जीवन के बारे में समझ पाया हूँ वह केवल इतना है कि जब ये गरजता है तो ये मात्र गरजता है, परंतु बरसता नहीं है। परंतु जब ये बरसता है तो ये स्वयं को खो देता है और अपने अस्तित्व को प्रसन्नता और स्वयं के प्रत्याग में दे देता है। तो इसे समझना होगा कि इसे वर्षा कहा करनी है। इसी धरती की पुकार के उत्तर में सही स्थान और सही समय पर। मेरे लिए वास्तविक जीवन पहाड़ियों पर वर्षा करना है जिन्हें बेहद ज़रूरत होती है। How the wind quietly descends to the earth. हवा अर्थ की तरफ बढ़ती है और उसे पूछती है तुम्हारे लिए जीवन क्या है? द अर्थ,
Why are you getting into these matters? They will make you mad, but since you have asked, listen for me. Life is love, the flow of affection which these numerous lives are drinking. These sprouts spring from me have to grow and give flowers and fruit. Whatever water I get from the clouds, river, and streams, I store it inside me in pure thirst and distribute it among thirsty. Thus, for me, this taking and giving is true life. To me, the sentiment of ममता is a boon. धरती कहती है कि तुम इन मामलों में क्यों पढ़ रही हो, वह तुम्हें पागल बना देंगे, परंतु क्योंकि तुमने पूछा है तो सुनो, मेरे लिए जीवन प्रेम है, वह प्रेम का बहाव जो ये अनगिनत जीव पी रहे हैं। प्ले जो मुझसे निकल रही है, इनको बड़ा होना है और फूल एवं फल देने हैं। जो भी पानी मुझे बादलों, नदियों और दरियों में मिलता है, उसे मैं पूरा विश्व के साथ अपने अंदर एकत्रित कर लेती हूँ, मैं बांटती हूँ। इस प्रकार मेरे लिए आदान प्रदान ही सच्चा जीवन है। मेरे लिए ममता की भावना एक वरदान है। By now, the wind is exhausted and somewhat confused too. She comprehends something, meditating on what she understood and trying to forget what she didn't. When her eyes full on a little girl who appears quite pretty and innocent, the little girl is lighting new lamps with the one that is all light in her hand. हवा थक चुकी है और कुछ उलझन में भी पड़ गई है। वह कुछ अर्थ निकालती है उन चीज़ों पर मनन करती हुई जो उसे समझ आई थी और उन्हें भूलने का प्रयास करते हुए जो उसे समझ नहीं आई थी। जब उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो काफ़ी सुंदर और मासूम प्रतीत होती है। नन्ही लड़की नए दीपकों को जला रही है, एक जलते हुए दीपक से जो उसके हाथ में है। फ्रेंड, हु आर यू माई डियर? मेरे प्रिय, कौन हो तुम? आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन। छोटी लड़की कहती है, मैं सृष्टि का जीवन हूँ। द विंड, वट आर यू डूइंग? हवा पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? लिटिल गर्ल, आई एम ओनली लाइटिंग दिस न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज ऑल लाइट। वेल, इन दीपकों को जला रही हूँ अपने हाथों में पकड़े जलते हुए दीपक से। लड़की जवाब देती है, द विंड, एंड दीज बिहाइंड यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड। हवा पूछती है, और पीछे ये क्या है? तुमने कुछ दीपक को बिना जलाए क्यों छोड़ दिया है? द लिटिल गर्ल, दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन दैम, देयर इज नो point in lighting them now. Who are earning to awake those who are waiting to light it. I am lighting only those I love this play of life. लड़की बोलती है, उन दीपकों में कोई तेल नहीं है, अब इन्हें जलाने का कोई अर्थ नहीं है। वह जो जागने के लिए आतुर हैं, जो जलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह केवल उन्हीं को जला रही है। मुझे जीवन का ये खेल बहुत पसंद है। Seeing this, the wind smiles as this play greatly impressed her. She is so much delighted that she forgets herself and joins the little girl. ये सुनकर हवा मुस्कुरा पड़ती है क्योंकि ये खेल उसे अत्यंत प्रभावित करता है। वह इतना प्रसन्न हो जाती है कि वह स्वयं को भूल जाती है और नन्ही लड़की के साथ लग जाती है। कहा आपने, जो हवा है वो सबके पास जाके अर्थ, मून, स्टार्स, लिटिल गर्ल सबके पास जा रही है और उनसे पूछ रही है कि उनके लिए जीवन का अर्थ क्या है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।